Hello students, welcome to Geography and we are on to the last chapter, 7th chapter, and it is Lifeline of National Economy. So national India's economy comes from all the three sectors. So what is the lifeline? Lifeline has to be transportation, the connection between these sectors. और वो connection सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है transportation. ये chapter शायद आपको पूरी बुक में सबसे easy लगेगा और उसी बेसिस पे आपको मार्क्स लेना. और सबसे पॉजिटिव बात, यू विल हैव अ मैप फ्रॉम हियर, ऑल्सो अ 5 मार्क क्वेश्चन. तो ये सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर और ज़्यादा मार्क्स वाला भी है, तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है. लेट्स सी व्हाट दे टॉक अबाउट इन द इंट्रोडक्शन. दे आर सेइंग कि वी यूज lot of material and services in our daily life which we all know, and if we are using, they need to come to us from the producer. From the producer they will go to the manufacturer, from the manufacturer they will go to the come to the market, from the market it reaches to our home. And one thing which is common between all is transportation. And how do we have this transportation? Through various means which we are going to see. So goods and services do not move from supply locals to the demand locals on their own. We know this. On simply I'm just comprehending this thing that they will not be moving by their own. We need some external support from external material, a medium to move them from one place to another. And this is what transportation and communication does. That's why they are known as the lifeline of Indian economy. Let's see कि lifeline क्या क्या है. Movement of goods and services can be over 3 important domains of our earth. और वो domains क्या हैं? एक है land, एक है air और दूसरा है तीसरा है water. और इस पे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हमने एक तरीके से डिवाइड कर लिया है और आपको बस बेस दे रहे हैं कि चैप्टर में ये चीज़ें हम आप पढ़ने वाले हैं. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लैंड है, लैंड पे यू हैव रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन. ओके, अंडरस्टैंड. दीज टू आई नो यू हैव हर्ड read many a times. This is the new one, pipelines. तो हमें ज़्यादा फोकस यहाँ रखना है. बट क्वेश्चन ऐसा है कि यहीं से आएंगे? नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Then we go to water and we have inland and overseas. When I talk about inland, it's like within the country on the rivers. And when I talk about the air transportation, so you have domestic and then you have international. Within that, they are saying कि who is the undertaker of the domestic as well as the international airports and this transportation. So public undertaking is there, which is government, and then you have private airlines also. We have more private airlines than public undertaking. So we are going to talk about roadways first. Now a basic thing to keep in mind. आप इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना चीज याद रखिए कि मेरिट्स ऑफ रोडवेज क्या है कंपेयर टू रेलवेज, डीमेरिट्स ऑफ रोडवेज क्या है कंपेयर टू रेलवेज. So merits of all these transportation, demerits of all this transportation is what base of your chapter and the question of your chapter. ज़्यादातर यही questions आते हैं. If you look back at the 10 years, past 10 years, you will find these are the maximum questions which come from this chapter. और कुछ है नहीं conceptual बहुत ज़्यादा इसमें, बस merits, demerits की बात होती है या फिर एक explanation कर देंगे पूरे रोडवेज के बारे में या रेलवेज के बारे में, क्योंकि वो चंक ऑफ अ टॉपिक है. एंड देन कम्युनिकेशन विच इज द लास्ट पार्ट. सो लेट्स सी इंडियाज रोड नेटवर्क, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग अबाउट 54.7 lakh kilometers. Too long, obviously. 7th largest country, very well connected. Now growing importance of road transportation over the rail transportation, they are just comparing here. Now ये comparison आप याद रखोगे, ये आपका आंसर हो गया merit and demerit of both roadways and railways. Or to be very honest, just answer yourself, ask a question to yourself and then you will have some pointers. वो भी right है. इसमें कुछ उसी पॉइंट्स को रिफाइंड तरीके से लिख दिया है. तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट पे कि ये पहला मेरिट क्या बता रहे हैं रोडवेज का कंपेयर टू रेलवेज. प्लीज हाँ, रेलवे से ही ज्यादा कंपैरिजन है इनका. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवेज. तो मैं सवाल करता हूं कि दोनों में से कौन सा एक्सपेंसिव है बनाने के लिए, और टीडीएस है तो बहुत ऑब्वियस रोडवेज ईजी है. तो पहला पॉइंट वही हो गया. नाउ कौन सा चीज का कंस्ट्रक्शन इजी है बिटवीन रेलवेज एंड रोडवेज हिली एरिया में बनाने के लिए? आपका आंसर होगा रोडवेज. दैट्स द सेकंड पॉइंट. रोड्स कैन कवर मोर ज्योग्राफिकल हार्डर लोकेशन which cannot be covered by railways. So if I want to construct a railway line in Himalayas, not possible. It's very difficult. I'm not saying not possible, but it's very, very difficult. And if you go to Jammu and Kashmir, Himachal, Uttaranchal, you will find more roads देन रेलवेज. ये आंसर दे ही देता है आपके इस पॉइंट का.
रोड कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप. देखिए, वाई इज दैट वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट रेलवेज इन हिल एरिया? बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स. पहाड़ है ना, तो स्लोप का ग्रेडियंट जो होता है बहुत हाई होता है, एकदम स्टीप होता है. और बड़ा इलॉजिकल सी बात करो, इतने स्लीप पे अगर आप रेलवे ऐसे डालेंगे तो इंजन पीछे गिर जाएगा ना. इलॉजिकल है, बट दैट्स द लॉजिक. यू कैन नॉट मेक रेलवेज इन हायर ग्रेडियंट, बट यू कैन मेक रोड्स. नाउ नेक्स्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल बट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. It's economical for short distance. I would like you people to add this point. Road transportation economical for the shorter distance. So roads provide door-to-door service. Now when I say door-to-door, if I open my door, 99% chances are there can be a road. Very less chances are there कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन होगा या फिर एयरपोर्ट होगा या फिर पोर्ट होगा. लॉजिक ये है कि I have to travel by road to reach station, रेलवे स्टेशन, टू रीच एयरपोर्ट एंड टू रीच पोर्ट. इसको बोलते हैं डोर टू डोर सर्विस. आपके घर तक रोड आता है, ना कि रेलवे, ना कि एयरवे, ना कि आपका पोर्ट वाटरवे. तो ये हो गया आपका डोर टू डोर सर्विस, एंड इसे हम बोलते हैं फीडर. रोडवेज आर फीडर टू द रेस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. लाइक वी टेक टैक्सी टू रीच अप टू एयरपोर्ट एंड देन वी गेट इनटू फ्लाइट, बोर्ड द फ्लाइट. तो उसको बोलते हैं फीडर है. सारा सामान जो होता है इट कम्स फ्रॉम एयरपोर्ट और फ्रॉम पोर्ट बाय रोडवेज टू द गोडाउन्स, एंड फ्रॉम द गोडाउन्स इट गोज टू द सेम प्लेसेस बाय रोडवेज. तो ये फीडर है. ये कुछ नए पॉइंट्स से होंगे जो आपने सुने हैं, और ये रेलवेज में नहीं होता है. तो अगर हमारे रोडवेज के पॉइंट्स क्लियर हैं तो ये आपकी मेरिट्स ऑफ रोडवेज डन. मूविंग अहेड, देन लेट्स टॉक अबाउट इंडिया का रोड सिस्टम. And as we said, is one of the largest road system. We'll begin with golden quadrilateral super express highways. एक वर्ड याद रखिए, नाई. इसे नाई बनाता है. नाई कौन होता है? जो बाल बनाते हैं बार बार. नो, सी इज जस्ट अ बैड जोक. नाई, NHAI is National Highway Authority of India. They are the one who construct these roads. Now when they say golden quadrilateral super express highway, they are connecting our टॉप सिटीज. अब अगर वो क्वाड्रिलैटरल बोल रहे हैं तो मैथमेटिकल टर्म है, 4 साइड्स होंगे. तो वो 4 बड़े शहर कौन से हैं जिनको ये कनेक्ट कर रहे हैं? बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली. तो ये आपका है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर एक्सप्रेस हाईवे. बना रहा कौन है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. मूविंग अहेड, कमिंग टू नेशनल हाईवेज. अब देखिए, आपने जो पढ़ा है वो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल था. इसका मतलब ये नहीं कि वो नेशनल हाईवे नहीं है, वो भी नेशनल हाईवे है, बट वो एक अलग ब्रांच उसे बनाती है और उसका केयर करती है. नेशनल हाईवेज जो हैं दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय CPWD. आपको बस ये कुछ एब्रीवेशंस याद रखने हैं. यहाँ पे CP मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. ये कंस्ट्रक्ट कर गए आपको, और ये करते क्या? दे कनेक्ट ऑल योर मेजर सिटीज. तो आप ऐसे याद रखिए, कनेक्टिंग ऑल द सिटी कैपिटल्स, स्टेट कैपिटल्स, ऑल द मेजर सिटीज. सिटी कैपिटल तो कुछ होता नहीं है. ऑल द मेजर सिटीज विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री आर कनेक्टेड बाय नेशनल हाईवेज. इंडिया का सबसे हिस्टोरिक जो रोड है वो है शेर शाह सूरी मार्ग. इसको आप शायद ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हो. इसे हम नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं. हमारे कंट्री में इसे अभी फिलहाल जो नाम दिया है, जो रेंज दी है वो है दिल्ली से अमृतसर. बट जो शेरशाह सूरी मार्ग है जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, इट वॉज स्टार्टिंग और इट कनेक्ट्स टू वेरी डिस्टिंक्ट सिटीज अक्रॉस दी सब कॉन्टिनेंट. एंड आई रिमेंबर कि इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम पेशावर टिल चिटागोंग. तो ये इतना लंबा एक्सप्रेस हाईवे था, पर हम इसे आप नेशनल हाईवे नंबर 1 याद रखिए, दिल्ली से अमृतसर शेरशाह सूरी मार्ग. कम टू स्टेट हाईवेज. तो स्टेट हाईवे कनेक्ट्स द स्टेट कैपिटल विद द मेजर सिटीज ऑफ द स्टेट. अब इसे बनाता कौन है? बनाने वाला है आपका, यहाँ पे CPW था तो यहाँ पे होगा SPWD, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. आपको इन सब में इतनी चीज याद रखनी है, कौन बना रहा है और कौन सा मेजर कनेक्शन है. दैट्स इट. तो आपके सारे रोड सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाएंगे. अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे. नाउ डिस्ट्रिक्ट रोड जो होते हैं कनेक्ट्स द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद द विलेजेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट. कंस्ट्रक्ट कौन करेगा? जिला परिषद.
जिसे हम डिस्ट्रिक्ट परिषद भी कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी कहते हैं। अदर रोड्स में आएंगे आपके विलेज रोड्स। अब विलेज रोड्स को कौन बनाएगा, क्वेश्चन है। विलेज, नो, जिला परिषद बनाएगा, बिकॉज विलेज जो होता है ना बेटा, उसकी खुद की गवर्नमेंट नहीं होती है। पंचायत इज द गवर्नमेंट बट दे आर नॉट ऑटोनोमस। फाइनेंशियल थिंग्स, फाइनेंशियल हेल्प कम्स फ्रॉम जिला परिषद से पैसे आते हैं और वो पैसे फिर यहाँ पे यूज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव सम रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड अंडर सम स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस और स्कीम्स। सो वी हैव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो ये जब शुरू की जाती हैं पुअर लोगों को जॉब देने के लिए, तब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और ये कच्चे रोड होते हैं और ये इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि वो अगर अगली बार ख़राब भी हो जाए तो आपको मैं वापस से जॉब दे सकूं। अब आते हैं बॉर्डर रोड्स पे ना। बॉर्डर रोड्स नाम से ही समझ में आता है कि दे आर कंस्ट्रक्टेड नियर द बॉर्डर। क्वेश्चन कम्स, व्हाई? डोंट यू थिंक इफ आई हैव माई military forces over there at the border, they need arms and ammunition and food supply, also communicating with the different centers within the city or within the local village जो भी नज़दीक होंगे। और रूरल डेवलपमेंट जो है उस एरिया का, बॉर्डर एरिया का, डिपेंड्स ऑन दिस बॉर्डर रोड्स। 1960 में एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप जिसे हम कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दे आर द वन हु कंस्ट्रक्ट दीज रोड्स। अब इंडिया का जहाँ जहाँ बॉर्डर है वो लोग वहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, खास करके नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में। क्या करते हैं? दे सप्लाई आर्म्स एंड एम्यूनिशन, फूड सप्लाई, एंड दे brings a better connectivity within the villages and the city nearby the border roads. Metal roads may be made up of cement, concrete or even bitumen of coal. ये बता रहे हैं कि भाई मेटल रोड क्या है, जिसे हम तार रोड कहते हैं। और हमारे कंट्री में जो है सीजन रोड भी होते हैं जो बारिश में वगैरह ख़राब किए जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये सीजन रोड को रखते क्यों हम? जैसे कि मैंने कहा, वी नीड टू स्टार्ट सम स्कीम वेयर वी कैन गिव जॉब टू द पीपल इन रूरल एरिया, इन ट्राइबल एरिया, जहाँ पे अगर हम एक बार पक्का रोड बना देंगे तो उन्हें बार बार जॉब नहीं दे पाएंगे। थोड़ा इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरियाज जो होती हैं वहाँ पर। लेट्स मूव अहेड एंड लेट मी शो यू दिस मेजर रोड सिस्टम इन इंडिया जो डेवलपमेंट का है। वी वर टॉकिंग अबाउट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सो दिस इज दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई एंड कोलकाता। ये क्वाड्रिलेटरल है, बट देन माई फोकस इज ऑन दिस येलो लाइन। वी कॉल दिस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। Understand, north-south corridor connects Srinagar to Kanyakumari, and let me be very precise. This connects Uri to Kanyakumari. Now, Uri will remember in your mind for a long time because of a very hit movie and a surgical strike which we did. So, exactly जो जगह है वो Uri है, from Uri to Kanyakumari, southernmost tip of our country. ये है हमारा north-south corridor. ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, ईस्ट वाला जो पार्ट है वो है सिलचर और वेस्ट है पोरबंदर, दी बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। तो आप ये प्लीज याद रखिए, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द लेंथ, बट दे हैव आल्सो मेंशन कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नॉर्थ साउथ का, ऑलमोस्ट 7300 किलोमीटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का लेंथ इज 5846 किलोमीटर। इमेजिन हाउ वेल वी आर कनेक्टेड विद दीज रोड्स, and thanks to our government for this. Moving ahead, railways. One of the largest rail network in the world. एशिया में भी, अब वर्ल्ड में है तो एशिया में भी बहुत सुपीरियर है हम रेलवेज को लेके, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, गुड्स ट्रेन रन इन आर कंट्री, सबसे ज़्यादा। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू बी proud of, but there are certain things which doesn't give us that much of an happiness. So let's compare कि merit क्या है, demerit क्या है। Railways, why do we use railways as compared to roadways? See, if you have lot of goods, bulky goods, and you need to transport for a long period of time economically, I think railways are more important and better compared to roadways. आ रहे हैं हम वही बातों पे, merits, demerits वाली बातें। Do remember this thing, वहाँ से कुछ पॉइंट आप उठा के बिल्कुल सीधे सीधे लिख सकते हैं आप। But see, road transport is much better compared to economical thing and all. Here on they are saying कि अगर वो short distance के लिए है तो comfortable for long distance क्या होगा? रेलवे होगा। और बल्कि गुड्स कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए? आप रेलवे के थ्रू कर सकते हो। मोर नंबर ऑफ पैसेंजर्स आप कैसे लेके जा सकते हो? थ्रू रेलवे के जरिए लेके जा सकते हो। तो अंडरस्टैंड कि रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
Now we are talking about something which we don't like to actually highlight, but we need to know, then only we can improve. There are certain problems which our railways face. Construction of bridges required across the rivers wide bed for laying down the railway lines. बहुत ज़्यादा ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं क्योंकि कंट्री में हमारे बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलीफ है और उस हिसाब से बहुत ब्रिज लगेंगे क्योंकि ज़्यादा नदियां हैं और ट्रेंचेस हैं, तो हमें ज़्यादा ब्रिज चाहिए. अब ये ज़्यादा ब्रिज से प्रॉब्लम क्या है? बस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गोज वेरी हाई. हिली टेरेन वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट हिमालयाज, तो रेलवेज बहुत ही कम हैं. एंड देन इवन इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया यू हैव लेस रेलवेज. इवन इन पेनिनसुलर इंडिया जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे है बहुत लिमिटेड है, तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ ही जाता है. और क्या आप रेलवेज को सैंडी टेरेन पे कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट. तो वहाँ पे भी नहीं बना सकते हो. तो आपके पास फिर से बहुत सारे पॉइंट हो गए. एक और चीज़ थी रेलवेज को रिलेटेड कि एक प्रॉब्लम हमारी रेलवे क्या फेस कर रही है. अब कुछ चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए. वी से इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी. दैट डजंट मीन कि यू विल टेक अप द बल्ब्स फैंस फ्रॉम द रेलवे वैगन. ये होता है. पीपल स्टील दीज थिंग्स. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. देन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वी फाइंड इन आवर कंट्री कंसिडरिंग रेलवेज, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट. इससे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है. और एक चीज, टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन, मिसयूज टू लार्ज एक्सटेंड इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री. ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो रेलवे के साथ जुड़े हैं. सो अब रेलवे से विल गो अहेड टू सम अदर ट्रांसपोर्टेशन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट टिल दैट टाइम प्लीज रिवाइज दिस एंड कीप स्माइलिंग.